Assalamu alaikum and welcome dear students. In previous lecture we have discussed about work needs to be done in term of scope and deliverables. So now in this lecture we are going to discuss that how work will get done by defining specific activities and arranging them in a sequence of relationship to create a network plan. Or simply we can call it a project scheduling. Since there are so many different people involved in making the project go smoothly, so it takes a lot of planning to make sure that all of the work happens in the right order, get done by the right people, and doesn't take too long. So that's what the project schedule management knowledge areas is all about. So in other words, we can say the project scheduling is about time management. So that how we complete a project. For that we needs to perform some activities to produce some project deliverables or outcome. So basically a schedule is a timetable for the plan, and a project schedules create a timetable and reveals the network logic that relates project activities to each other in a coherent fashion. प्रोजेक्ट स्केड्यूल प्लानिंग से मुराद ये होती है कि हम लोग ने कुछ एक्टिविटीज़ जो कि ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उनको टाइम के साथ मैनेज करना और इस तरीके से मैनेज करना लॉजिकल रिलेशनशिप के थ्रू कि ओवरऑल हमारे एक्टिविटीज़ का एक नेटवर्क बन जाए, और फिर हमने उसी नेटवर्क को लेके उसी पे काम करके ओवरऑल एक प्रोग्रेस देखनी होती है अपने प्रोजेक्ट की और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग. सो बिफोर गोइंग ऑन टू प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, we first discuss few basic concepts related to project scheduling. And the first of all, we have to define what activity is. So basically, an activity is a component of a project work that consumes time and sometime effort by humans. By means sometime effort by humans means it does not necessarily require the effort in all the activities. Like we have given an example. So waiting for a concrete to harden can take several days, but it does not require any human effort. इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी वो चीज़ एक कंपोनेंट होता है हमारे एक प्रोजेक्ट के काम का जिसमें हमें टाइम कंज्यूम होता है एंड देन वी हैव टू कंज्यूम सम एफर्ट या एनर्जी ऑन इट. लेकिन ये जो एफ़र्ट या एनर्जी है ये लाजमी नहीं है कि हमने हर एक एक्टिविटी या हर एक टास्क में लगानी होती है. जैसे कि वी आर गोइंग फॉर अ हाउस बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, सो कभी कभी ये होता है कि हम लोगों ने कंक्रीट को सूखने का इंतज़ार करना पड़ता है या देखना पड़ता है कि ये हार्ड हो जाए, देन वी स्टार्ट अ नेक्स्ट एक्टिविटी. सो वो जो हार्डन टाइम होता है या उसके वो जो कंक्रीट को सूखने का अमल का टाइम होता है, that can also be considered as an activity, but it does not necessarily require the effort from a people. So as you see in the diagram, there are a building house construction project, ठीक है, and then each the whole project is divided into some tasks like project management task, foundation task, building structure task, interior task and landscaping task. And then these tasks are further subdivided into subtasks, and then these subtasks are divided into work packages. So इसमें let's suppose हम एग्जांपल दे देते हैं फाउंडेशन की. तो जो फाउंडेशन में है कि हमने एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ करना है, देन वी आर गोइंग फॉर डिगिंग द अर्थ एंड देन वी आर गोइंग फॉर गेट मटेरियल एंड लेबर एंड देन ले फाउंडेशन. तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं. सो हम इन सब को एक एक सिंगल एक्टिविटी कह सकते हैं, और इसी एक्टिविटी को हम कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट टास्क. एंड ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी हमने ड्राइव की हैं फ्रॉम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर.
So our next concept is activity duration concept. So actually activity duration is the specific quantity of time that exists between the designated start time and end time of a scheduled activity. So मतलब कि एक्टिविटी ड्यूरेशन वो टाइम होता है किसी भी कैलेंडर यूनिट के अंदर जो कि एक एक्टिविटी के स्टार्ट और एंड होने का हमें पता देता है, या ये वो टाइम होता है जो कि एक एक्टिविटी के स्टार्ट और एंड होने के दरमियान होता है. The activity duration should be carefully measured from the start date to the end date and can be calculated in whatever calendar units are appropriate given the anticipated time frame of the project, such as days, weeks, months and etc. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है उसको मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी टू द एंड ऑफ द एक्टिविटी, और किसी भी यूनिट के अंदर. ये यूनिट आपका एक दिन मीन्स एक डे हो सकता है, ये वीक हफ्ते में हो सकता है, या मंथली भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट. नाउ द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इज स्केड्यूल एक्टिविटी. तो स्केड्यूल एक्टिविटी इज अ स्केड्यूल टास्क विच वी आर परफॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट. मीन्स कि हमने जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं, and when we are making the network diagram from those work activities, so all those activities which are listed in the work breakdown structure or in network diagram, these are all are scheduled activities as well. So now taking an example of this chart, ये जो हमने activities की list बनाई है, इसमें हम देख रहे हैं कि there are a few activities and then we are describing that those activities, like activity A denotes site selection, activity B denotes buying concession and activity C denotes rent facilities वगैरह. So हर एक एक्टिविटी के साथ उसके टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो यूनिट यूज़ किया है that is days. So now we are measuring the activity in days, means कि अगर हमने साइट सिलेक्शन की एक्टिविटी डिज़ाइन की है और project, so it take 4 days to complete the site selection activity and so on. So इसका मतलब है कि जो activity duration है वो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं. So the next concept is estimating activity durations. इसका मतलब कि हम लोगों ने हर एक एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है उसको किस तरीके से एस्टिमेट करना है. So we shall begin our study of scheduling with a look at the estimation of activity duration. A good estimate means activity duration are crucial in project scheduling. So they underpin all the activities or output of the scheduling process. For example, जैसा कि हम लोगों ने पिछली प्रीवियस जो स्लाइड है उसके अंदर देखा था कि हमारे पास देर आर फ्यू एक्टिविटीज़ एंड वी हैव आर ड्यूरेशन इन डेज फॉर दोज एक्टिविटीज़. अब हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि जो हर एक एक्टिविटी है इसके लिए ये जो ड्यूरेशन साथ लिखी गई है इसका एस्टिमेट हमारे पास कहाँ से आया है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी आर एस्टिमेटिंग दीज activity durations, but not only estimating these activity duration, but all the stakeholders related to the project, means your project manager and team members have to agree on a time estimate for each and every activity in the project. इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, दे हैव टू एग्री ऑन द एक्टिविटी ड्यूरेशन कि यस वी कैन डू दिस एक्टिविटी इन दिस मच ड्यूरेशंस. मतलब कि ये जो एक्टिविटी है जो कि हमने डिफ़ाइन की है इसको हम इतने ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. सो नाउ देयर आर 3 ways टू एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, एंड दीज three ways include either using of historical data, or you are time the activity, or you are using a probabilistic method. So now we are going to study each of them in detail.
So the one of the way to estimate the activity duration is use historical data. Historical data is usually dependent upon the past experience of a project manager of project team or an organization. मीन्स के अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने उस तरह का कोई एक्टिविटी पहले परफॉर्म की हुई है तो उस हिस्टोरिकल डेटा को यू कैन चूज़ एंड फिट इनटू योर करंट प्रोजेक्ट, और उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस एक्टिविटी की ओवरऑल ड्यूरेशन कितनी होगी. सो द नेक्स्ट वन इज़ टाइम द एक्टिविटी. टाइम द एक्टिविटीज मीन्स के वेन एवर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू डू अ ट्रायल रन ऑफ एन एक्टिविटी and establish an estimate of an activity duration, so you can go for it. मीन्स कि अगर आपके पास इतना टाइम है और इतनी ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप उस एक्टिविटी को एक्चुअली परफॉर्म कर सको, ठीक है, एक ट्रायल रन के तौर पे, तो आप लोग उस एक्टिविटी को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं एंड यू आर गोइंग फॉर अ ट्रायल रन एंड देन यू एन एस्टिमेट अ ड्यूरेशन कि हाँ जी इस पर इतना ज़्यादा ड्यूरेशन लग सकता है और वी कैन इंक्लूड दिस ड्यूरेशन इन आवर प्रोजेक्ट. Let's for example Calgary Winter Olympics. In Calgary Winter Olympics, many of the activities in the presentations and ceremonies were tried out in advance to establish accurate estimate of their durations. मीन कि उस ओलंपिक्स के अंदर बहुत सी जो हमारी एक्टिविटीज़ थी प्रेजेंटेशंस की या ओपनिंग एंड एंडिंग सेरेमनीज़ की, वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी थी ट्रायल बेसिस पे, ताकि अंदाज़ा हो सके हमें कि वो हर एक एक्टिविटी कितना टाइम लेती है. So this method is useful for relatively simple or one-off activities. मीन्स कि अगर कोई एक्टिविटी एक दफ़ा आपने करनी हो तो उसके लिए तो ये एक्टिविटीज़ यूज़फुल हो सकती है, बट समटाइम्स अ सिंगल एक्टिविटी मे बी रिपीटेड 10 टाइम्स इन द सेम प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जहाँ पे एक ही एक्टिविटी जो है वो बार बार रिपीट भी हो सकती है, ठीक है. जैसे ब्रिक लेइंग की बात आ गई, जो ब्रिक लेइंग एक्टिविटी है डेट कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. सो जहाँ पे एक्टिविटीज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं देन वी हैव अ लर्निंग कर्व एक्सपीरियंस. मीन्स कि जब फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू दैट एक्टिविटी इट मे टेक अ लॉन्गर टाइम देन वी आर कंटिन्यूसली डूइंग इट फॉर 3, 4, 5 टाइम्स, ठीक है. मीन्स कि हम लोग जो जो उस एक्टिविटी को जितनी बार करते जाएंगे उतनी ही बार वो टाइम कम लेगी. सो इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस आप लोग एक एक्टिविटी को टाइम नहीं कर सकते, या अगर आप लोगों ने टाइम करना भी है देन यू हैव टू बी साइंटिफिकली डिज़ाइन द एवरेज टाइम टू डू दैट एक्टिविटी. मीन्स कि पहली दफ़ा जब आप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम कम लगेगा एंड देन द गो ऑन एंड देन यू आर गोइंग सम लर्निंग कर्व एक्सपीरियंस थ्रू द एक्टिविटी. सो द नेक्स्ट वन इज़ वी आर यूजिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड. प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में एक्चुअली होता ये है कि वी आर गोइंग फॉर एन वेटेड एवरेज टेक्निक. इन वेटेड एवरेज टेक्निक के अंदर वी हैव थ्री डिफरेंट टाइम्स ड्यूरेशन फॉर अ प्रोजेक्ट, लाइक वी हैव एन ऑप्टिमिस्टिक टाइम, वी हैव अ पेसिमिस्टिक टाइम एंड देन वी हैव अ मोस्ट लाइकली टाइम. So the optimistic time is the minimum time and activity required to complete if everything went exactly as expected without any difficulties or problem whatsoever. Mean कि जब भी हमारा काम बिल्कुल स्मूथली हो, ठीक है, as expected और as planned out, और हमें किसी किस्म की भी कोई मुश्किल या प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो अगर उस टाइम के अंदर हमारा प्रोजेक्ट की एक्टिविटी हो जाती है तो देन वी कॉल इट ऑप्टिमिस्टिक टाइम. Now the second one is most likely time. The most likely duration is assuming the normal conditions, ठीक है, जहाँ पे conditions normal होती हैं, ठीक है, और वहाँ पे हो सकता है कि हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए as compared to optimistic time. The third one is pessimistic time. Then we have, while we have encountered major difficulties or there are few hindrances, ठीक है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे काम के अंदर, then we may took a longer time as compared to the normal conditions. तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं कि pessimistic time किसी भी एक्टिविटी के लिए रख देते हैं. So the in weighted average technique we have a formula, like we have an optimistic time, then we add most likely and pessimistic time, but we multiply the most likely with 4 and divided the whole with 6, the whole equation with 6 digit. Means
कि हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम लेते हैं, देन 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक एंड देन डिवाइड द होल विद 6। इन सबको 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक एवरेज टाइम निकल आता है। फिर उस एवरेज टाइम को हम एक्टिविटी की ड्यूरेशन कंसिडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे पास एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है इन विच वी हैव सम एक्टिविटीज़, ठीक है, लाइक we have an analysis of invoice screen first activity, and then development of invoice screen second activity, then designing of invoice screen and then testing of invoice screen। ये हमारे पास 3-4 एक्टिविटीज़ हैं एक बिलिंग सिस्टम की प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो नाउ वी हैव एस्टिमेटेड अ फ्यू ड्यूरेशंस फ्रॉम 3 different point of views। first of all from optimistic point of view, then pessimistic and then most likely। So we are taking the example of first activity like analysis of invoice screen। So optimistic जो time duration था उसके accordingly we suggest कि it took 6 days to complete analysis of invoice screen activity। So अगर उसी का हम pessimistic time देखते हैं, यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, हमें कोई इश्यूज़ भी आ सकते हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो हम लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया, वी मेड एन एस्टिमेट दैट इट द सेम एक्टिविटी मे टुक लॉन्गर टाइम एंड मे कंप्लीटेड इन 14 डेज। ठीक है, वही जो 6 दिन वाली एक्टिविटी थी वो 14 डेज में भी कंप्लीट हो सकती है। और इसी तरीके से द मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन, मतलब इन दोनों का जो एवरेज टाइम हो सकता है डैट मे बी 8 डेज, कि जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन थी तो हो सकता है कि वो एक्टिविटी 8 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाए। सो नाउ वी आर अप्लाइंग एन फार्मूला विच इज़ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली डिवाइडेड बाई पेसिमिस्टिक। जब हम इस फार्मूला के अंदर इन तीनों एस्टिमेट्स को या इन तीनों एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन को डालेंगे तो वी हैव एन एवरेज टाइम या एवरेज एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन विच इज़ 8.67 डेज। सो हम इसको फिर हम एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वी हैव 3 डिफरेंट वेज टू एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। एक्टिविटी की ड्यूरेशन को 3 डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग मेजर कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो हमने वे पढ़ा डैट इज़ हिस्टोरिकल डेटा, कि जहाँ पे हम लोग उसी तरीके की एक्टिविटी पहले भी परफॉर्म कर चुके हों, देन वी हैव अ क्लियर आइडिया दैट हाउ मच टाइम दैट एक्टिविटी कैन टेक टू कंप्लीट। सेकेंड वन इज़ व्हेन वी आर टाइमिंग द एक्टिविटीज़, मीन्स कि अगर हमारे पास जो एक्टिविटी है वो वन टाइम है और रेदर सिंपल एक्टिविटीज़ हैं तो हम उसको ट्रायल में रन भी कर सकते हैं और एक्चुअली देख सकते हैं कि वो एक्टिविटी कितनी ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हुई। एंड द थर्ड वे इज़ वेटेड एवरेज टेक्निक, जहाँ पे हम लोग 3 डिफरेंट टाइम्स लेते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, एंड देन फार्मूला में उसको पुट करके देन वी हैव एन एवरेज टाइम, और उसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन एक्टिविटी ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट स्केजुलिंग इज़ लॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि जो प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के अंदर हम जो नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप इज़ अ डिपेंडेंसी बिटवीन 2 एक्टिविटीज़। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि एक एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है एंड हाउ दोज एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मीन के पहले कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी एंड देन उसके फिनिश होने के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सो दीज आर कॉल्ड द लॉजिकल रिलेशनशिप और द डिपेंडेंसी बिटवीन 2 एक्टिविटीज़। अब हम इसको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं इन डिटर्मिनिंग डिपेंडेंसीज कॉन्सेप्ट के अंदर। सो डिपेंडेंसीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटी इन विच one activity is dependent on another to complete an action, or perhaps an activity is dependent on another to start an action before it can proceed। Means कि ये डिपेंडेंसी वो रिलेशनशिप होता है 2 एक्टिविटीज़ के दरमियान, जहाँ पे उनको ये देखना होता है एक्टिविटीज़ को कि कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट होके फिनिश होगी एंड देन उसके फिनिश को प्रोडक्ट को या आउटकम को लेके नई एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, या इसमें यह भी हो सकता है कि वी कैन स्टार्ट एक्टिविटीज़ इन कंकरेंट वे, जो कि अब नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा। सो अभी हम लोग देखते हैं डिटर्मिनिंग डिपेंडेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं विच कैन वाइडली यूज़
in determining dependencies. First one is predecessor activity and second one is successor activities. तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि what are known as predecessor and what is meant by successor. So predecessors are those activities that must be completed prior to initiation of a later activity in the network diagram. Means कि प्रीडिसेसर वो एक्टिविटी होती है जिसको कि पहले फिनिश करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम जाते हैं. एंड द सक्सेसर एक्टिविटीज़ that cannot be started until the previous activities has been completed. So these activities follows predecessor task. Means कि जो successor activity होती है वो predecessor की succession होती है. Means कि जब तक हमारा predecessor activities finish नहीं होती हम successor activities को start नहीं कर सकते. As depicted in the picture in this slide कि there are two activities, activity A and activity B. तो जो एक्टिविटी ए है इससे एरो निकल के जा रहा है एक्टिविटी बी की तरफ. मीन्स कि जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है और वी हैव अ लॉजिकल रिलेशनशिप दैट इज़ फ्रॉम एक्टिविटी ए टू एक्टिविटी बी. मीन्स कि जो एक्टिविटी ए है वो प्रिसीड कर रही है एक्टिविटी बी को. और इन अदर टर्म्स वी कैन से एक्टिविटी ए मस्ट बी फिनिश बिफोर एक्टिविटी बी इज स्टार्टिंग. ठीक है. सो इस केस के अंदर एक्टिविटी ए को हम कहेंगे एक्टिविटी A is the predecessor of activity B and activity B is the successor activity of activity A. Now here is another question. Can an activity be a successor and predecessor at the same time? So the answer is yes. Well, technically yes, we can say कि एक ही एक्टिविटी एक ही टाइम में प्रीडिसेसर भी हो सकती है एंड सक्सेसर भी हो सकती है. लेट्स सपोज कि हम अगर इसी को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं एग्जांपल को एंड देयर इज़ एक्टिविटी बी जो कि एक्टिविटी ए देयर इज़ एन एक्टिविटी सी जो कि एक्टिविटी बी के बाद स्टार्ट हो रही है. ठीक है. सो अब हम एक्टिविटी बी को पहले तो कहेंगे कि एक्टिविटी ए की सक्सेसर एक्टिविटी है. ठीक है. लेकिन क्योंकि इसके बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी तो हम कहेंगे जो एक्टिविटी सी है उसका एक्टिविटी बी प्रीडिसेसर है. मीन्स कि एक्टिविटी एक ही टाइम पे सक्सेसर एक्टिविटी भी है ए की और प्रीडिसेसर एक्टिविटी भी है सी की. सो अ सिंगल एक्टिविटी मे बी अ सक्सेसर और अ प्रीडिसेसर एट अ सेम टाइम इन अ नेटवर्क डायग्राम. So now the next concept is the kind of dependencies. Means कि हमने अभी तक तो समझ लिया कि what are dependencies are. Means these are the logical relationships कि how activity sequence between each other कि कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगी कौन सी एक्टिविटी उसके बाद स्टार्ट होगी. Now the next one is the kind of dependencies. कि मीन्स कि इनके दरमियान कितने डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. So basically there are 4 kinds of dependencies. उसमें से फर्स्ट वन है finish to start. Means कि एक्टिविटी ए फिनिश बिफोर एक्टिविटी बी स्टार्ट. सो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप भी होता है. ठीक है. जो कि हर एक एक्टिविटीज़ के दरमियान हो सकता है. अब इसके लिए एग्जांपल है जैसे कि आप लोगों ने देखी है कि व्हेन वी आर डिगिंग द होल. ठीक है. उसके बाद यू कैन प्लांट अ ट्री. सो दिस इज कॉल्ड फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटी. और यहाँ पे एक रिलेशनशिप लॉजिकल रिलेशनशिप ये भी बन रहा है कि जब तक आपकी एक्टिविटी ए फिनिश नहीं होगी आपकी एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं हो सकती. ठीक. सो द सेकंड काइंड इज़ फिनिश टू फिनिश. ठीक है. फिनिश टू फिनिश मीन्स कि जब आपकी एक्टिविटी ए फिनिश होगी तो साथ ही आपकी एक्टिविटी बी भी फिनिश हो जाएगी. नाउ द स्टार्टिंग टाइम उसके बारे में हम लोग कोई इतना ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि वो दोनों एक्टिविटीज़ कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं. बट द नाउ द एम्फेसिस ऑन फिनिश टाइम मीन्स कि एक्टिविटी ए फिनिश होगी तो साथ ही एक्टिविटी बी भी फिनिश हो सकती है. लेट्स सपोज इन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट we have a testing and documentation and 2 different activities. So once the testing activity finish you can also finish the documentation activities after testing activity. So the third kind of dependency is start to start activity. In this combination when we start an activity A we can also start activity B. और इनके फिनिश के लिए हमें कोई इतनी ज़्यादा क्रिटिकली सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस इसमें सिंपल एक रिलेशनशिप होता है लॉजिकल दैट इज़ कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग एक्टिविटी ए वी कैन स्टार्ट एक्टिविटी बी एज वेल. लाइक
वो उसी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हम उठाते हैं, तो वी आर डिज़ाइनिंग समथिंग देन वी आर आल्सो कोडिंग इट, ठीक है। जो डिज़ाइन की एक्टिविटी स्टार्ट होगी या तो वी कैन आल्सो स्टार्ट द कोडिंग एक्टिविटी। द लास्ट वन इज स्टार्ट टू फिनिश एक्टिविटी। इस तरह की जो लॉजिकल रिलेशनशिप है दैट इज सेल्डम यूज्ड और वेरी रेयर टू यूज्ड इन एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक्चुअली इसमें होता कुछ इस तरीके से है कि दी एक्टिविटी ए स्टार्ट व्हेन एक्टिविटी बी फिनिश, ठीक है। सो मीन्स के हम एक्टिविटी ए को स्टार्ट कर देते हैं बट ड्यू टू सम एनी इशू उसके अंदर थोड़ा सा लैग टाइम आ जाता है और उससे पहले हमारी जो एक्टिविटी बी है वो फिनिश हो जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोजेक्ट और अ कंस्ट्रक्शन साइट ऑन अ लैंड इन विच ऑन दैट देयर इज ऑलरेडी सेमी स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग इज़ अवेलेबल, ठीक है। मतलब कि हम लोग एक प्लॉट के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे एक टूटी फूटी इमारत पहले से है। सो एक्टिविटी वन इज़ टू कंस्ट्रक्ट अ साइट एंड एक्टिविटी बी इज़ टू डिमोलिश अ साइट, ठीक है। सो इन दिस सेंस जब तक हम उसको डिमोलिश नहीं करेंगे तब तक हम लोग नए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इसमें ये होगा कि जो एक्टिविटी ए है वो हम स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी बी को फिनिश करेंगे। सो दिस मे बी अ काइंड ऑफ एग्जांपल इन स्टार्ट टू फिनिश काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। सो द नेक्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ डिपेंडेंसीज। जैसे कि हमने काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज में पढ़ा कि देयर आर 4 काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज लाइक फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू स्टार्ट। सो लाइकवाइज देयर आर नेचर ऑफ डिपेंडेंसीज के मीन्स कि कौन कौन सी डिफरेंट नेचर हो सकती हैं, कौन कौन से डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से एक एक्टिविटी को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ सकता है इनहेरेंटली, ठीक है। सो इसके अंदर जो फर्स्ट है हमारे पास दैट इज़ मैंडेटरी डिपेंडेंसीज। इन मैंडेटरी डिपेंडेंसी ये जो हम इसको हम हार्ड लॉजिक भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक इनहेरेंटली उन प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के अंदर चीज़ आ जाती है। लेट्स सपोज कि जैसे कि हमने बात की कि फर्स्ट हमारे पास फाउंडेशन ले होगी एंड देन वी आर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्स, ठीक है। सो इन दिस जो एक्टिविटी की सीक्वेंस है यहाँ पे हमारे पास मैंडेटरी डिपेंडेंसी आ रही है कि जब तक हमारी एक्टिविटी ए फिनिश नहीं होगी हम एक्टिविटी बी को स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज इन अदर एग्जांपल कार वॉशिंग प्रोजेक्ट, तो जब तक हम कार को वॉश नहीं करेंगे उसको हम ड्राई नहीं कर सकते, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू वॉश अ कार टू ड्राई इट, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंडेटरी उनके दरमियान डिपेंडेंसीज आ रही हैं कि आप पहले उसको वॉश करोगे एंड देन यू आर गोइंग फॉर ड्राइंग द कार। नाउ द सेकेंड वन इज डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी। Discretionary dependencies are on the discretion of a project team or a project manager, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मीन्स का उनका एक दूसरे के साथ कोई हार्ड लॉजिकली रिलेशनशिप नहीं बन रहा। वो कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी वो फिनिश कर सकते हो, बट इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर अ पैरेलल और कॉन्करेंट में आप लोग क्या करते हो उसको सीक्वेंस में कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कि एक एक्टिविटी के फिनिश होने का इंतज़ार करते हो एंड देन यू आर गोइंग फॉर सेकेंड एक्टिविटी, बट इट इज़ ऑन योर डिस्क्रिप्शन। यू कैन स्टार्ट दोज एक्टिविटी इन पैरेलल एज वेल, या कंकरेंट वे में भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव एनफ रिसोर्सेज इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी एज सच नहीं होती, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, but it is dependent on the resources you have in the project, ठीक है। So the next one is external dependency. So these kind of a dependency involve a relationship between a project activity and another activity which is outside the project, ठीक है। Let's suppose if you are going for a movie production, ठीक है, project, and you are thinking of a project activity that involves a shooting scene इन स्नोफॉल सीज़न। सो अगर आपने वो स्नोफॉल सीज़न के अंदर करना है एंड यू आर गोइंग फॉर एक्चुअल स्नोफॉल सीज़न, तो मे बी वो उस मूवी का स्टार्टिंग सीन हो, बट आप लोगों ने बाकी के सीन पहले कैप्चर कर लेने हैं, ठीक है, वो पहले डायरेक्ट कर लेने हैं, उसकी शूटिंग पहले आप लोगों ने कर लेनी है एंड देन व्हेन यू हैव अ स्नोफॉल सीज़न तो आप लोग
वो जो एक स्नोफॉल का आपके पास सीक्वेंस आ रहा है तो आप उस सीज़न में जाके शूट कर लेते हो एंड देन यू ऐड इट इन अ स्टार्ट ऑफ अ मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू हैव एन एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, जहाँ पे आप लोगों के पास जो एक्टिविटीज़ की डिपेंडेंसीज हैं ये आपस में रिलेशनशिप है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल इवेंट। सो अब हमने देखा कि हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स डिपेंडेंसीज हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा फिनिश टू स्टार्ट, देन स्टार्ट टू फिनिश, एंड देन स्टार्ट टू स्टार्ट एंड फिनिश टू स्टार्ट। सो ये 4 डिफरेंट तरह की हमारे पास डिपेंडेंसीज थी एंड देन देयर आर 4 डिफरेंट नेचर ऑफ डिपेंडेंसीज, जिसके अंदर हमने सबसे पहला पढ़ा मैंडेटरी डिपेंडेंसी, देन सेकंड हमने पढ़ा डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी, ठीक है, एंड देन द थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। इसके अलावा एक 4 टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज भी होती है नेचर की, जिसको हम कहते हैं इंटरनल डिपेंडेंसी। इंटरनल डिपेंडेंसी मीन्स कि दिस इज़ ड्यू टू द जो प्रोजेक्ट टीम होती है उनकी वजह से जो डिपेंडेंसीज आती हैं वो, लेट्स सपोज कि वी हैव अ डिनर प्रोजेक्ट, कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट है डिनर का, उसको हम लोगों ने स्केड्यूल करना है। सो हमारे पास जो इंटरनल डिपेंडेंसी वो यही आ रही है कि जब तक हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पे नहीं आ जाते तब तक हम लोग डिनर स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ internal dependency. So we have 4 different nature of dependencies as well, which included mandatory dependency, discretionary dependency, external dependency, and the fourth one is internal dependencies. So this concludes our basic concepts regarding the project scheduling. So next time we are going for network diagram. So hope if you have a few questions related to these slides or lecture, you can ask me.